ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور ان کو نہیں جلایا۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جس کو سن کر انسان حیران ہوتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس پر بہت اثر کرتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ بیت المقدس شہر میں پیدا ہوئے۔ دانیال کا مطلب ہے خداوند میرا قاضی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والد اور والدہ کی خوشی زیادہ مدت تک نہ رہی، کیونکہ اس زمانے میں ملک میں عجیب حالات پیش آتے ہیں۔ ایک روایت کی بنیاد پر اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا۔ چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام شراف زادوں میں سے تھے، ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی بنا پر ان کے والدین ان کو جنگل میں لے جا کر رہا کر دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ چند دن کے تھے، جنگل میں انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے بھرے ہوئے جنگل میں خدا کی ایمان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آ جاتی ہے۔ شیر بہت جلد ہی حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور ان کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ایک عجیب اتفاق پیش آتا ہے۔ وحشی شیر حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتے اور انہیں زبان لگاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے، کسی کو حقیقت معلوم نہیں، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان انہیں اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور سخت سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے، آپ سب بخت النصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا کو جانتے ہیں، جو طاقتور حاکموں میں سے تھا جو آج تک دنیا میں موجود تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب چھوٹے تھے، اسی وقت ان کا سخت سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے داستان خوبصورت بنتی ہے جب ان کا اور بخت النصر کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 14 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بخت النصر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے، اور شہر تقریباً ویران ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھے افراد جو اس حادثے سے بچ جاتے ہیں مصر کی جانب بھاگ جاتے ہیں۔ جوانوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان نوجوانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں جن کو قیدی بنا کر بابل لایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت عزرا بھی قیدی بنتے ہیں۔ بابل کے لوگوں نے ان جوانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ بابل کے لوگ ان جوانوں کی شکایتیں بابل کے بادشاہ کے بخت النصر سے کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، اے بادشاہ، آپ ان لوگوں کو یہاں لائے ہیں، ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں کرتی ہیں اور ان کا سارا ہوش و حواس ان جوانوں پر ہے، یا ان کو باہر نکالیں یا ان کو قتل کر دیں۔ بخت النصر ان کی بات سننے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس بات کا بخت النصر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخت النصر اس بات کے بعد تمام جوانوں کو شہر کے میدان میں جمع کرتا ہے۔ جس وقت یہ جوان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، بخت النصر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے وہ 4 جوان چاہیے، ان کو آزاد کر دو۔ 4 جوان آزاد ہو جاتے ہیں اور بابل کے لوگ باقیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان 4 جوانوں میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت عزرا علیہ السلام تھے۔ بخت النصر ان جوانوں کو اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اپنے وزیر بنا کو بلاتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ ان جوانوں کو اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو اور انہیں ضروری ٹریننگ دو تاکہ مستقبل میں انہیں محل میں کام پر رکھا جائے، اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ان 4 جوانوں کو میرے ہی کھانوں میں سے کھلاؤ اور میری مخصوص شراب دینا، اور وزیر ان 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ وزیر خود ان جوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے، ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے
जो इनके मजहब में जायज नहीं थी। वजीर इस बात को कबूल नहीं करता और उनसे कहता है, अगर बादशाह के हुक्म के मुताबिक खाना नहीं खाओगे और 3 साल के बाद बादशाह आपको ज़ईफ और कमज़ोर देखेगा तो इसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम वजीर से कहते हैं, तुम परेशान ना हो, हम लोग बहुत अच्छे नज़र आएंगे। हकीकत में इसी तरह हुआ। जो लोग हराम खाना खा रहे थे और वो लोग इनके मुकाबले में कमज़ोर नज़र आ रहे थे। इसी दौरान खुदावंद आलम ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता कर दिया। उसके बाद जब 3 साल गुजर जाते हैं तब इनको जवानों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया जाता है। बादशाह इन जवानों से मुख्तलिफ काम करवाता है। ये जवान सालों मुख्तसर के कैदी के उन्वान से उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन बुख्तुन्नसर को अच्छा नहीं लगता था कि इन जवानों को कैदी की निगाह से देखें। बुख्तुन्नसर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना वजीर बनाता है और इस दौरान खुदा हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को पैगंबरी मबूस करता है। बाबिल के लोग हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हैं और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के रफ्तार और किरदार को देखकर लोगों से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने कोशिश की कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बदनाम करें और बुख्तुन्नसर को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से बदजन करें और बुख्तुन्नसर से जाकर कहते हैं कि ए बादशाह, तूने इस शख्स को अपना वजीर बनाया है, लेकिन वो पैगंबर की तरह रहता है। इसके अलावा जो शराब आप पीते हैं वो हरगिज नहीं पीता। बुख्तुन्नसर इस बात को सुनने के फौरन बाद हुक्म देता है कि शराब को लाया जाए और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को दी जाए ताकि वो शराब को पिएं। वो चीज़ जिसका इंतज़ार था, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम शराब नहीं पीते थे। बाबिल के लोग कामयाब हो गए थे कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बादशाह की नज़रों में गिराने में। उस दिन के बाद बादशाह हुक्म देता है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले में डाल दिया जाए जो शेरों से भरा हुआ था। लेकिन अजीब था, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उन शेरों के साथ बड़े आराम और सुकून से थे, क्योंकि शेरों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि उनके करीब आ गए थे और उनको चाट रहे थे। वो इस तरह बर्ताव कर रहे थे जैसे पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई हो। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इस बात पर मजबूर थे कि वो शेरों के साथ जिंदगी गुजारें। उसके बाद एक अंगूठी बनाते हैं जिसके बीच में अपनी तस्वीर और बाएं दोनों जानिब शेरों की तस्वीर बनाते हैं। कुछ अरसे के बाद बाबिल का बादशाह बुख्तुन्नसर एक ख्वाब देखता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और अजीबोगरीब काम को अंजाम देता है। बुख्तुन्नसर सबसे चाहता है कि वो उसे बताएं कि उसके ख्वाब की ताबीर क्या है, लेकिन फिर बुख्तुन्नसर को भी याद नहीं रहता कि उसने ख्वाब में क्या देखा था, इसलिए कोई भी उनके ख्वाब की ताबीर को बयान नहीं कर सकता था। इस बिना पर बुख्तुन्नसर हुक्म देता है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले से निकाला जाए और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम बता सकते हो कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। मुख्तसर ये कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बुख्तुन्नसर से कहते हैं कि तुमने ख्वाब में एक मुजस्मा देखा है और एक बड़ा पत्थर उससे टकराता है और वो मुजस्मा टूट जाता है, यानी बुख्तुन्नसर की बादशाही किस तरह खत्म होगी और वो बुत भी नाबूद हो जाएंगे। ये बात बयान करना जरूरी है कि आजकल के मुहक्किकीन की नज़र में इसकी ताबीर जिसमें बड़ा पत्थर मुजस्मे से टकराता है वो बड़े मुजस्मे को नाबूद कर देता है। तो रात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक आखिरी पैगंबर और बुतों के नाबूद होने की जानिब इशारा है। लिहाजा इस नज़र से हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर की बशारत दे रहे हैं। जिस वक्त बुख्तुन्नसर देखता है हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब की ताबीर बयान कर सकते हैं, तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को दोबारा महल में लेकर आते हैं और पहले से ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो देता है। लेकिन बाबिल के लोग हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं छोड़ते और उन्होंने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से निजात पाने के लिए हर बुरे तरीके को आजमाया। अगरचे इस बार बहुत सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी
बख्त नसर को राजी कर लिया और बादशाह के हुक्म के मुताबिक एक बहुत बड़ा मुजस्समा बनाया गया। और उसके बाद बादशाह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि इस बुत के सामने सजदा करो और इसकी पुस्तिश करो, और इन्हें कहते हैं कि अगर इस काम को अंजाम नहीं दिया तो उन्हें जलती हुई भट्टी में फेंक देंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बख्त नसर को जवाब देते हैं कि हम सिर्फ खुदा की बंदगी करते हैं और खुदा हमको इस आग में जिसमें तुम डालोगे बचा लेगा। बादशाह इस बात को सुनने के बाद बहुत गजबनाक होता है और हुक्म देता है कि आग की बहुत बड़ी भट्टी बनाई जाए। उन्होंने हुक्म की पैरवी की, आग को अच्छी तरह जलाया गया। उसके बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके दोस्त की जानिब रुख करता है और कहता है, तुम लोगों ने खुद इसका इंतखाब किया है। इसके बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को उनके 3 साथियों समेत उस आग में फेंक दिया जाता है और बख्त नसर इन 4 लोगों को आग में जलने का तमाशा देखने के लिए अपने तख्त का सहारा लेता है। लेकिन बख्त नसर इस वक्त आग में एक अजीब चीज को देखता है। जब गौर से देखता है तो आग में 4 लोगों की बजाय 5 लोग मौजूद हैं और पांचों शख्स ज़ाहिरी शक्ल सूरत के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। कुछ लम्हे गुजरते हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी जल रहे थे। बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन लोगों को आग से बाहर निकाला जाए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उनके 3 साथी ऐसे आग से बाहर आते हैं जैसे आग में थे ही नहीं। बख्त नसर पूछता है, मैंने तुम 4 लोगों को आग में डाला था, लेकिन आग में 5 लोग मौजूद थे, वो 5वां शख्स कौन था? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो 5वां शख्स जो हमारे साथ था फरिश्ता था। बख्त नसर इन हालात को देखकर ऐलान करता है कि किसी को भी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा कहने का हक नहीं और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उनके साथ आखिरी उम्र तक रहेंगे। इस वाकया को सालों गुजर जाते हैं और बख्त नसर बाबल में इस दुनिया से चला जाता है। और जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की वफात का जमाना करीब आया तो खुदावंद ने हुक्म दिया, नूरे हिकमत बंदी को अपने फर्जंद के सुपुर्द कर दो और उसको अपना खलीफा बना दो। चुनाचे उन्होंने तामील इरशाद बारी ताला कर दी। उसके बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और वहीं बाबिल में दफन हुए।